यार आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है आवाज। डॉट बॉक्स इंटीग्रल से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था? खालिद बताओ यार, लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था? हाँ जी, कोई बोले यार कि लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ है? जी सर, मैं बताता हूँ आपको जिससे देखे। जी बताओ बताओ। आप सबके पास अपनी कॉपीज और पेन होना चाहिए। ओके सर। चलो छोड़ दो खालिद, बस छोड़ जी दो। सर। हम बस यहाँ डॉट बॉक्स से स्टार्ट करने लगे। सर डोर बॉक्स का कर लिया था, इसका ये देख रहा हूँ मैं। बस ठीक है, एक दफा दोबारा से हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अच्छा जी, डॉट बॉक्स इंटीग्रल से हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। वो है जी, इफ a is equal to x naught which is less than x1 and which is less than up to so on x n minus 1 which is less than xn and xn is equal to b, then the finite ordered set p which is equal to x naught x1 so on xn is known as the partition of the interval ab. तो पार्टीशन हमारे पास क्या करती है, एक इंटरवल को डिवाइड करती है सब इंटरवल्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो सब इंटरवल बना, दैट इज x नॉट से x1 and the second sub interval is x1 से x2 and so on. The last sub interval will be xn से xn minus 1. So partition divides an interval into sub interval. The next हमारे पास जो definition है, that is upper and lower sums. The upper sum of a function f over a partition P of interval AB is denoted by UFP or UPF, and it is given as UFP is equal to summation I is equal to 1 to n capital Mi into xi minus 1. This is difference which can be written as del xi.
Now here capital Mi is the supremum of the function on the subinterval xi minus 1 to xi. इस सब इंटरवल पर ये आपका फंक्शन का सुप्रीमम होगा xi to xi minus 1. Then similarly we define the lower sum. The lower sum over a partition P of AB is denoted by LFP or LPF, and it is given by LFP is equal to summation I is equal to 1 to n small mi into xi minus 1. This is the length which can be written as del xi. Now here small mi is the infimum of the function f on this subinterval xi minus 1 say xi. Now it is worth to mention here that lower sum cannot exceed upper sum. That is, for every partition P of interval AB, we have LFP is less or equal to UFP. Now this is the first result relating to upper and lower sums. Let f be a bounded function on the interval AB, and let small m and capital M be the infimum and supremum of function f on the interval AB. Then for any partition P of AB, we have m into b minus a is less or equal to lower sum of the function f on the partition, which is less or equal to upper sum of the function, and which is less or equal to capital M into b minus a. अब इसको हम प्रूव करते हैं. Let P be the partition of the interval AB, which contains elements like x0, x1, x2, and xn. Since it is given that function is bounded on the interval AB, this implies that function is bounded on each subinterval of this interval. For example, it is bounded on this subinterval, that is xi minus 1 to xi, where I is equal to 1 to n. Now let small mi and capital Mi be the infimum and supremum of the function f on this subinterval. Then this implies m is less or equal to mi, small mi, which is less or equal to capital Mi, and which is less or equal to capital M. ये रिलेशन खालिद साहब मैंने कैसे लिखा है? हाँ जी, कोई मुझे बताए कि ये वाला रिलेशन कैसे आया? जी बोले. ये वाला रिलेशन कैसे लिखा है मैंने? ये वाला सर लोअर बाउंड जो है वो इन्फीमम से स्मॉल होगी और जो इन्फीमम है वो सुप्रीमम से स्मॉल होगी, सुप्रीमम देन अपर बाउंड से स्मॉल. ये तो समझ नहीं आई बात की. सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी लोअर बाउंड है m लोअर बाउंड है वो इन्फीमम से स्मॉल होगी
और जो इन्फीमम है वो सुप्रीमम से स्मॉल होगी, एम आई हमारे पास सुप्रीमम में, और सुप्रीमम वो हमारे तो पास वो जो अपर वो तो बाउंड है। स्मॉल वो तो स्मॉल होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एम जो इन्फीमम है सर जो एम है ना वो होल फंक्शन की इन्फीमम है, और जो एम आई है वो एक पार्टीशन की इन्फीमम है। सब इंटरवल, ठीक हाँ ठीक हो जी, गया, बिल्कुल तो इस बिल्कुल वजह से बिल्कुल। एम आई से कम जी है, जी बिल्कुल लेस है, बिल्कुल और बिल्कुल एम कैपिटल एम आई ठीक ठीक हो गया, ठीक हो कैपिटल गया। एम आई इसमें एम से लेस देन है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। स्मॉल एम जो है वो आपके पास इन्फीमम है इस इंटरवल का, होल फंक्शन की। होल पूरे इंटरवल का, और जो स्मॉल एम आई है वो फंक्शन का इन्फीमम है इस सब इंटरवल पे एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। ठीक हो गया जी। तो ये इसका इन्फीमम होल इंटरवल के इन्फीमम से बड़ा होगा, जबकि इसका सुप्रीमम जो है वो होल इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होगा। दैट्स वाई ये रिलेशन इस तरह हमने लिखा। नाउ नेक्स्ट जी, हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल एक्स आई से, और फिर साथ ही हम समेशन ले लेते हैं। और summation I is equal to 1 to n m del xi is less or equal to summation I is equal to 1 to n small mi into del xi, which is less or equal to summation I is equal to 1 to n capital Mi del xi, which is less or equal to summation I is equal to 1 to n capital M del xi। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये जो चीज है ये क्या चीज है? What is this? सर रिमान सम। अभी मैंने डिफाइन किए हैं ये दोनों चीजें। lower and upper sum, जी lower and upper sum, यस, लोअर एंड अपर सम्स, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास है जी लोअर सम, और ये आपके पास है अपर सम दूसरे वाला। दिस इज लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ एंड दिस इज अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ। सो यहाँ से हमने m को समेशन से बाहर निकाला, फिर समेशन ओपन करें तो आपके पास इन बिटवीन जो पॉइंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एंड पॉइंट्स रह जाएंगे। एंड पॉइंट्स xn माइनस एक्स नॉट, वेयर xn इज इक्वल टू b होता है और x नॉट इज इक्वल टू a होता है। सो m इंटू b माइनस a इज लेस और इक्वल टू कैपिटल LFP, which is less or equal to capital UFP, and which is less or equal to capital M into B minus A। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है जी एक एग्जांपल हमारे पास, let f be a real valued function such that f from 0 3 to r is defined as f of x is equal to 1 when x belongs to 0 1, and f of x is equal to 2 when x belongs to 1 to 2, and f of x is equal to 3 when x belongs to 2 to 3. I will consider a general partition of the interval 0 3 as p is equal to 0 1 minus delta 1 plus delta 2 minus delta 2 plus delta and 3, where delta lies between 0 and 1 by 2. Now the first subinterval from this partition is 0 say 1 minus delta, that is this one. The second is 1 plus delta say 2 minus delta, that is this one. The next one is 1 plus delta say 2 minus delta, that is this one. And then 2 minus delta say 2 plus delta, that is this one. Then 2 plus delta say 3, the last सब इंटरवल वो हो गया हमारे पास ये चीज। नाउ द लेंथ्स ऑफ दिस सब इंटरवल डेल x1 हम फाइंड करेंगे, वो क्या होगा
1 minus delta minus 0, that is 1 minus delta. Del x2 will be 1 plus delta minus 1 minus delta, that is equal to 2 delta. The next will be del x3, that will be 2 minus delta minus 1 plus delta, that is 1 minus 2 delta. The del x4 will be 2 plus delta minus 2 minus delta, that will be equal to 2 delta. Then del x5 will be equal to 3 minus 2 plus delta, which is equal to 1 minus delta. अब हम इन सब इंटरवल्स पर फंक्शन का इन्फिमम्स और सुप्रीमम्स फाइंड करेंगे. फर्स्ट इंटरवल पर m1, then m2, then m3, m4, m5 and then capital M, capital M2, capital M3, capital M4 और capital M5. First of all we choose delta is equal to 1/3. अच्छा जी, अब मुझे फर्स्ट सब इंटरवल पर फंक्शन का इन्फिमम और सुप्रीमम बताएं कैलकुलेट करके. नकल नहीं मारनी, अपने अपनी कॉपीज पर अलग से खुद से करें. जी, फर्स्ट सब इंटरवल दैट इज 0 to 1 minus delta, इस पर फंक्शन का इन्फिमम और सुप्रीमम बताएं. जी, फर्स्ट सब इंटरवल 0 से 1 minus delta पर फंक्शन का इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड करके बताएं. डेल्टा आपको गिवन है 1/3. जी, खालिद जी बताएं. बिलाल साहब बताओ यार. सर ये फर्स्ट इंटरवल में 103 0.6
सर इन्फीमम 0 होगा, सुप्रीमम 2/3। जी कोई और बताए? ठीक, आपका सुन लिया मैंने जवाब। सर यही है, इन्फीमम 0 है और सुप्रीमम 2/3। ये अच्छा, और नेक्स्ट कोई? खालिद तुम बताओ, जी सर, मैं हल कर रहा हूँ अभी। जल्दी करो। अच्छा जी, देखें, आपके पास फर्स्ट सब इंटरवल था 0 से 1 माइनस डेल्टा। डेल्टा हमने चूज किया हुआ है 1/3, तो हमारे पास सब इंटरवल बन गया 0 से 2/3। ये कंटेन कर रहा है किस इंटरवल में? 0 से 1 में। अब 0 से 1 में फंक्शन हमें कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। जब x 0 से 1 है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास फंक्शन हो गया कांस्टेंट, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास उसका इन्फीमम क्या होगा? दैट विल बी 1। और उसका सुप्रीमम क्या होगा? दैट विल आल्सो बी 1। सो इसका m1 स्मॉल m1 इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल M1 इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली नेक्स्ट सब इंटरवल के लिए करें। नेक्स्ट सब इंटरवल हमारे पास क्या है? 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा। इसके लिए फाइंड करें इन्फीमम और सुप्रीमम। Sir, infimum 1 जी and जी supremum 2. Infimum जी 1 जी, इन्फीमम 1 and supremum 2. एंड सुप्रीमम 2। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ये हमारे पास होगा जी अब सेकंड सब इंटरवल 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 है, तो हमारे पास सब इंटरवल बन गया 2/3 से 4/3 विच इज कंटेन्ड इन 0 1 यूनियन 1 to 2। और यहाँ पर फंक्शन हमें कुछ इस तरह डिफाइंड है। 0 1 पर फंक्शन डिफाइंड है 1 और 1 से 2 पर फंक्शन डिफाइंड है 2। ठीक हो गया? तो इस फंक्शन का infimum that will be 1 and supremum will be 2। नेक्स्ट सब इंटरवल के लिए फाइंड करें। नेक्स्ट सब इंटरवल हमारे पास है जी 1 प्लस डेल्टा से 2 माइनस डेल्टा। सर इसमें इन्फीमम 2 और सुप्रीमम 2। सर टू नेक्स्ट रहेगा, दोनों का 2 आता है। इन्फीमम भी और सुप्रीमम भी। इन्फीमम और सुप्रीमम क्या है जी? सर 2। दोनों तो 2 आता है। दोनों 2 बिल्कुल ठीक है। सर 1 और 2 में कंटेन करता है ना। जी जी जी, ये आपका थर्ड सब इंटरवल 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 पुट किया तो हमारे पास आ गया 4/3 से 5/3 विच इज 2। तो यहाँ पर फंक्शन हमें डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। तो इसका इन्फीमम भी 2 हो गया और सुप्रीमम भी 2 हो गया। नेक्स्ट सब इंटरवल दैट इज 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा, इसके लिए फाइंड करें। सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ऊपर वाले पेज पे लेके जाना काइंडली।
ये लो 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा। लास्ट सब इंटरवल भी देख लें 2। जी जी सर इनफीमम 2 और सुप्रीमम 3। इन्फीमम 2 और सुप्रीमम 3। 3 बिल्कुल ठीक है। लास्ट सब इंटरवल भी लिख लें। सर सुप्रीमम 3। ठीक है भैया, लास्ट सब इंटरवल भी लिख लें 2 प्लस डेल्टा से 3। इसके लिए भी फाइंड कर दें। सर इसके लिए आएगा 3। जी जी 3 आएगा सर। 3 आएगा, बिल्कुल ठीक। सुप्रीमम भी इन्फीमम भी। जी बिल्कुल ठीक। सर दोनों 3 आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ये जी आपके पास फोर्थ सब इंटरवल था 2 प्लस डेल्टा से 3। इससे पहले इंटरवल था 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 1/3। डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 पुट किया तो हमारे पास आ गया 5/3 से 7/3 विच इज कंटेंट इन 1 to 2 यूनियन 2 to 3। और 1 to 2 पर फंक्शन हमें डिफाइंड है 2 और 2 to 3 पर फंक्शन हमें डिफाइंड है 3। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फीमम हो गया 2 और सुप्रीमम हो गया हमारे पास 3। ठीक हो गया जी। द लास्ट सब इंटरवल वाज 2 प्लस डेल्टा से 3। डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 पुट किया तो हमारे पास आ गया 7/3 से 3 which is contained in 2 to 3। और यहाँ पर 2 to 3 से हम फंक्शन हमें डिफाइंड है f of x is equal to 3। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फीमम हो गया 3 एंड सुप्रीमम हो गया वो भी 3। अब हमने अपर सम और लोअर सम इसके फाइंड करने हैं। जरा जल्दी से अपर सम इसका फाइंड करके बताएं कि क्या आ रहा है। अपर सम u is equal to summation I is equal to 1 to n capital Mi into del xi। ये आपके पास अपर सम की डेफिनेशन। here n is equal to 5। बाकी सब चीजें आपने कैलकुलेट की हुई हैं। डेल एक्स की वैल्यूज अगर आपने नोट करनी है तो ये नोट कर लें। डेल x1 is 1 minus delta, del x2 is 2 delta, del x3 is 1 minus 2 delta, del x4 is 2 delta and del x5 is 1 minus delta। ये आप नोट कर लें। Del x1 is 1 minus delta, del x2 is 2 delta, del x3 is 1 minus 2 delta, del x4 is 2 delta, del x5 is 1 minus delta। ये आपने नोट कर ली। Sir, sum is 20/3। जी 20/3। बिल्कुल ठीक है जी। लोअर सम भी फाइंड करें। सर मेरा लोअर सम 16/3 निकला है। ठीक हो गया जी। अपर सम फाइंड कर लें आप। जी लोअर सम
और अपर सम आपने फाइंड कर लिए। अपर सम की हमारे पास डेफिनेशन थी, किस तरह डिफाइन होता है, यूएफपी is equal to summation I is equal to 1 to n capital Mi into del xi. Now here n is equal to 5, तो हम summation अगर open कर रहे हैं तो we have m1 into del xi plus m2 into del x2 plus m3 into del x3 plus m4 into del x4 plus m5 into del x5. अब कैपिटल M1 2 3 4 5 ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1 2 2 3 एंड 3। डेल x1 की वैल्यू पुट की 1 माइनस डेल्टा, डेल x2 की पुट की 2 डेल्टा, डेल x3 की पुट की 1 माइनस 2 डेल्टा, डेल x4 की पुट की 2 डेल्टा एंड डेल x5 की पुट की दैट इज 1 माइनस डेल्टा। इन सबको हमने ऐड किया तो वी हैव 6 प्लस 2 डेल्टा। डेल्टा चूंकि हमने चूज किया हुआ था 1/3, वो पुट किया तो वी हैव 20/3, दैट इज अपर सम इज 20/3। सिमिलरली लोअर सम हम फाइंड करेंगे। लोअर सम की डेफिनेशन LFP is equal to summation I is equal to 1 to n small mi into del xi, where small mi is the infimum of the function f on the subinterval xi minus 1 to xi। तो यहाँ पर n is equal to हमें 5 है, तो हम समेशन ओपन करेंगे, स्मॉल m1 into del x1 plus m2 into del x2 and so on plus m5 into del x5। स्मॉल m1 2 3 4 5 की हम वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1 1 2 2 3। अब डेल x1 की वैल्यू पुट करें 1 माइनस डेल्टा, और सिमिलरली डेल x2 3 4 5 की, तो इन सबको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया दैट इज 6 माइनस 2 डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू, चूंकि 1/3 हमने सपोज किया हुआ था, सो उसको पुट करें तो वी हैव 16/3। सो लोअर सम इज 16/3 एंड अपर सम इज 20/3। अभी हमने एक नोट पढ़ा था कि लोअर सम कैन नॉट एक्सीड अपर सम, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि लोअर सम कैन नॉट एक्सीड अपर सम। ठीक हो गया जी, ये सबने नोट कर ली एग्जांपल। मैं नोट्स एक दफा दोबारा से यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ मिसिंग हो गया तो वो देख ले, बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये पार्टीशन की डेफिनेशन, देन इसके बाद अपर एंड लोअर सम्स, lower sum cannot exceed upper sum, this was our first theorem। This was our first example, how to calculate upper and lower sums of a function f। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।